आर्टिकल 22 थोड़ा सा क्लैरिटी ले आते हैं। ड्यू प्रोसेस, ओके, ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। The concept of due process of law and procedure established by law, it relate to what? Legal fairness and protection of rights. किसके बारे में बात करता है? लीगल फेयरनेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लीगल फेयरनेस बिफोर द ड्यू प्रोसेस वी हैव टॉक्ड अबाउट, इट केम ड्यूरिंग द मेनका गांधी केस। इंडिया यूज टू गो ऑन द प्रोसीजर established by law, ओके, प्रोसीजर established by law। सो ये जो लीगल फेयरनेस है, मेनका गांधी केस में आया था। उसके पहले क्या होता था? यू कैन फॉलो द प्रोसीजर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने बताया था दीज आर द स्टेप्स। दीज आर व्हाट? दीज आर द स्टेप्स दैट यू टेक। मतलब अगर एक बिल पास करना है, सो यू नो इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। इफ इट इज अ गवर्नमेंट बिल, इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। उस पर डिबेट होगा, इट विल बी वोटेड अपॉन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ बिल, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अगर वो स्टेप्स यू आर फॉलोइंग, the moment you follow the steps, you are good to go. That's it. There can be no debate and discussion whether whatever that law has been passed is good or not. The same thing happened. The law that was there, which seized Menka Gandhi's passport, it was argued that it followed the steps. But Menka Gandhi said that this is not fair. And this was the very first time that, this case has been accepted. उसके पहले कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पहले फेयरनेस का जो ये जो था, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। नाउ फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल टॉक अबाउट इट। बट ये जो है मेनका गांधी केस, ऑब्वियसली इट वाज समथिंग दैट, आप ऐसे समझिए कि गॉसिप के लिए बहुत अच्छा था। इंडियाज मोस्ट पावरफुल फैमिली के घर का जो डर्टी लॉन्ड्री है, वो बाहर आ रहा था। ओके, वो क्या हो रहा था? बाहर आ रहा था। तो एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड, एंड लैंडमार्क जजमेंट देना इस पे सेंस बनाता है। ओके, so because everybody was reading na, and the judges also, they used to go to back to their house, their wives, they used to ask them कि मेनका गांधी के केस का क्या हुआ, है ना? everybody was saying, ठीक है। so it is good for common people, absolutely, okay, it is good for common people। so ये legal fairness का जो केस है यहां पर आया था। So, understanding the concept of procedure established by law and due process, it is crucial to protect people from arbitrary state action. Now, what is procedure established by law? So, if a law is passed by the legislature and properly enacted, courts cannot question its fairness. ये तो बहुत सिंपल है, सभी को समझ में आ गया। जो steps हैं which are mentioned in the law, how to make a law, there are certain steps. You follow those certain steps, and the moment you follow those steps, the fairness of that steps cannot be taken into account. Sorry, the fairness of the end product. What I mean to say is, you have followed the steps by the book. You have passed a law. So law क्या है? End product है ना? This act is an end product. So you cannot question the fairness of the end product. Okay. So courts only check if the law was followed correctly and not whether it is just or unfair. तो just है या unfair है, या this is fair or unfair, something like this cannot be discussed. The moment if the law was followed correctly, if the steps were followed correctly, if it was properly enacted or not, that's it. So features क्या है? They check the law must be passed by the legislature. If the procedure is followed, the law is valid, and the courts cannot question whether the law is fair or unjust. Okay, so the courts, they cannot question what? If the law is fair or unjust. So if parliament passes a law allowing imprisonment without trial, the courts must accept it as long as it follows the proper procedure. Okay, and even if the law is unfair, the court cannot strike it down under procedure established by law. So there is a question, considering Menka Gandhi case, don't you think even natural justice has a huge vacuum of judges arbitration? वही मैंने कहा ना कि tyranny of unelected कहां से आया?
हु इज अनइलेक्टेड, द जजेस आर अनइलेक्टेड, और उनकी टिरनी, दिस इज व्हाट अरुण जेटली said. Tyranny of the unelected is via the basic structure and the due process. Okay. Both of them not present in the original constitution, not intended, we can say, by the founding fathers. The देखिए हुआ क्या ना कि बहुत opportune टाइम पे पास किया गया. 1973 केशव नंदा भारती, when it was passed, so already Indira Gandhi was on shaky ground. She had started to be on the shaky ground. Why? Because at this time CIA and all other entities, they wanted revenge for Bangladesh. So already जो है कांग्रेस पार्टी में फूट डालना, all these things were happening. So वहां पर 1973 में पास किया गया. And people did not realize what kind of this giant anaconda this basic structure would be. तो उसको छोड़ दिया गया. फिर 1978 में पास किया गया ये जो मेनका गांधी केस है, जिससे ड्यू प्रोसेस आया. Then also Morarji Desai was there. He was against Indira Gandhi. Everybody was licking their lips that this Gandhi family's dirty laundry is in the open. Let us enjoy. ओके, बिकॉज एक होता है ना सास बहू का जो लफड़ा था वो बाहर आ गया. जो सास बहू का लफड़ा था वो क्या हो गया, अब जो है बाहर आ गया कि दिस सास इज नॉट अलाउिंग. एंड हु इज ओके, हु इज दिस, ये इंदिरा गांधी. ठीक है, तो ये इसी के लिए जो है चेंज हो गया. सो यहीं से जुडिशियरी जो है पावरफुल होते चली गई. और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वी हैड दिस कोलिशन धर्मा एंड कोलिशन गवर्नमेंट्स. तो वैसा कोई आया ही नहीं हु कैन टेम द जुडिशियरी. ठीक है, एक मिनट. और डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन आफ्टर कोर्ट्स मस्ट एक्सेप्ट इट, कहां लिखा हुआ है ये वाला ना, कोर्ट्स ओनली चेक इफ द लॉ वाज फॉलोड करेक्टली. सो यहां पर आपको समझना है, ओके, यहां पर आपको समझना है कि इवन इफ द लॉ इज अनफेयर, द कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक इट डाउन अंडर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. मतलब क्या है कि अगर लॉ का स्टेप्स, प्रोसीजरल स्टेप्स क्लियर है, प्रोसीजरल स्टेप्स जो है वो क्लियर है, तो द फेयरनेस कैन नॉट बी चेक्ड, द कोर्ट हैज टू एक्सेप्ट. ओके, मान लिया कि इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, क्या ये सही है आपकी नजरों में? शुड एनीबडी बी इम्प्रिजन्ड विदाउट ट्रायल? वी नो ना इट इज नॉट फेयर. But if in the procedure established by law regime, this has to be accepted if it is made through proper channels and proper steps have been followed. अब समझ में आया? We know this is not fair, but if it is being made by the competent people and if it is made by following the correct step, then it must be accepted. Okay. AK गोपालन केस में उल्टा हुआ था. AK Gopalan case में the court had upheld the procedure established by law. Okay, so some boys can say कि अच्छा AK गोपालन को जेल में रखने के लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया आपने, उसको मंजूरी दे दी. जब मेनका गांधी की बात आई, किसी गर्ल की बात आई, तो आपने कहा कि ओ माय स्वीट चाइल्ड, लेट अस लुक इनटू द फेयरनेस ऑफ योर लॉ. Okay, so this is also something that you can use to keep in mind. What is the difference between AK Gopalan and Menka Gandhi? Okay. AK Gopalan वर्सेस मेनका गांधी अगर याद रखना तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि AK गोपालन को बोला भाई तुम जेल में ही रहो. ओके, दिस इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, वट एवर लॉ हैज बीन देयर. तो हुआ क्या था ना कि AK गोपालन के समय कम्युनिस्ट पे क्रैकडाउन हो रहे थे. द कांग्रेस वाज क्रैकिंग डाउन ऑन कम्युनिस्ट्स. ओके, सो बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं मद्रास में, वो जेल में जा रहे थे. ओके, सो जो जेल में उनको डाला जा रहा था, तो उसके लिए दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. सी माई राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज एट स्टेक. दे सेड कि भाई ये जो डिटेंशन लॉ है विच हैज बीन मेड बाय द मद्रास गवर्नमेंट, इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दे हैव फॉलोड द करेक्ट स्टेप एंड दे हैव द पावर टू मेक द लॉ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. बट इन द मेनका गांधी केस, एमईए का एक लॉ था, या एमईए को जो पावर मिला था, वहां से एक लॉ आया था. और उसमें जो है दे सेड कि वी कैन सीज द पासपोर्ट, हम जो है पासपोर्ट सीज कर सकते हैं. ओके, बट व्हाट हैड हैपेंड, हुआ क्या था
Basically what had happened was that they started to check into the fairness, whether ये जो सीजर ऑफ पासपोर्ट है उसके लिए जो लॉ बना है, इज इट फेयर और नॉट फेयर. सो वहीं से जो है पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया. देयर वाज अ टोटल शिफ्ट इन पैराडाइम. इज इट क्लियर? What is due process of law? So courts can examine both the procedure and fairness. So please remember, in due process, procedure is checked as well as fairness. Okay. And if a law is unjust, arbitrary, or violates the fundamental rights, the courts can strike it down and the law must be properly passed. So यहीं पर खत्म हो जाता है आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. यहीं पर खत्म हो जाता है. Your procedure established by law ends here. But due process, it follows two more steps. That is, court check if the law is fair, just and reasonable. And then if the law is really unfair, the courts will declare it ultra vires or unconstitutional. Okay. So if a law allows arrest without evidence, the court can strike it down as it is unfair. And ये जो fairness है unfairness है दोस्त, yes, you can say गौरी is correct. प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उसमें आप अगर नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो आपको ड्यू प्रोसेस मिल जाएगा. यही चीज थी ना 2023 के प्रीलिम्स में. ओके उसमें आंसर नेचुरल जस्टिस दिया था ना. फेयर एप्लीकेशन मेनी पीपल वेयर सेइंग बट द आंसर वाज नेचुरल जस्टिस. फेयर एप्लीकेशन का मतलब ही दूसरा होता है दोस्तों. ओके फेयर एप्लीकेशन जो है उसका मतलब ही डिफरेंट होता है. ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अब वो नेचुरल जस्टिस क्या होता है, फेयर एप्लीकेशन क्या होता है, ऑलराइट मैं जो है बाद में आपको बताऊंगा. मेनी पीपल कंफ्यूज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अन अकेडमी कंफ्यूज हुआ था. आई थिंक फोरम भी गलत दिया था. वाजीराम ने भी अभी तक गलत है उनके वेबसाइट पे. आई वॉज ट्राइंग टू मेक द पॉलिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उनके वेबसाइट पे डाउनलोड किया मैंने जस्ट टू सी जस्ट टू चेक. अभी तक फेयर एप्लीकेशन डाला हुआ उन्होंने. आंसर नेचुरल जस्टिस है. ठीक है ऑलराइट. अब आंसर क्या है, नेचुरल जस्टिस है. ठीक है एनीवेज ओके ऑलराइट. यहां पर हम बात करते हैं Menka Gandhi versus Union of India. So Supreme Court, it expanded the Article 21 and ruled that laws must be fair, just and reasonable. And this moved India closer to the due process of law. So key difference क्या है दोनों में देख लेते हैं between due process and procedure established by law. So judicial review, the courts cannot question the fairness of the law in the procedure established by law. In due process, they can question, they can strike it down based on unfairness. फोकस कहाँ है प्रोसीजर एस्टैब्लिश का, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने पे. ओके whereas in due process law is fair and just. Protection of right, it can allow unfair law if proper procedure is followed. Due process में it protects individual rights. Individual rights can only be protected जब हम चेक करेंगे whether something is fair or unfair. Example of a bad law, so if parliament passes an unfair law, the courts must accept it. Why? Because the proper procedure has been followed. So courts can reject unfair law in the due process. इंडिया में यूज किया जाता था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, whereas due process was more prominent in USA, वेस्टर्न डेमोक्रेसी. केस लॉ, एके गोपालन केस में क्या हुआ था, नैरो इंटरप्रिटेशन. नैरो इंटरप्रिटेशन ओके. और ये जो मेनका गांधी है, इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ड्यू प्रोसेस के हम क्लोजर आए थे. ओके so under procedure established by law, a law banning free speech must be followed if even if it is unfair. This was pre 1978 condition of India. Okay दूसरा, under due process courts can strike it down. So this was post 1978. क्लियर है सभी को? ओके सो ये याद रखिएगा, आंसर GS2 में आएगा. अगर यूपीएससी चाहती है तो पूछेगी जरूर 10-15 नंबर का. यही सब लिखना होगा. एके गोपालन केस, मेनका गांधी केस, जब तक नहीं लिखिएगा नंबर नहीं मिलेंगे. ओके इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट द केसेस, somebody else will write. दिस इज द प्रॉब्लम विथ मेंस. इफ यू आर नॉट रेडी टू राइट, अब जैसे कोई पूछ रहा है कि इसको स्किप कर सकते हैं, केस को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए कि यू आर नॉट इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ना. दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन.
आपके रूम में कोई दूसरा बैठा हुआ है आपसे पहले जो केस लिख रहा है, आपका पेपर आया, एग्जामिनर ने खोला, बेसिक बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, केस लिखा नहीं है, सो विल ही बी गिविंग यू द सेम मार्क्स एज दैट पर्सन? कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इफ दैट पर्सन विल क्वालिफाई यू विल नॉट क्वालिफाई, इफ दैट पर्सन विल क्वालिफाई यू विल नॉट क्वालिफाई। ओके, सो ये चीज समझिएगा, मिनिमम बेसिक, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मिनिमम बेसिक एफर्ट इज नीडेड फ्रॉम योर साइड। वो अगर नहीं करने के लिए आप तैयार हैं तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइट विद द आईआईटी एंड आईएम प्रोडक्ट्स? मैंने पहले भी कहा है कि इट इज वेरी इजी टू compete with these people, IIT and IIM products, but at the same time you have to be cautious that you are putting in the minimum basic effort. Many people ask ना कि मैं इग्नू से हूँ, या मैं बीए कर रहा हूँ, या मैं टियर 3 कॉलेज से हूँ, कैन आई टेक योर कैन आई टेक योर वीडियोज, उसको देख सकता हूँ मैं, मेरा हो जाएगा? ओके, सो दिस इज अ वेरी बैड वे टू लुक एट थिंग्स। अगर आप हैं भी टियर 3 कॉलेज से तो अब फर्क क्या पड़ता है, एवरीबडी इज फिलिंग द सेम फॉर्म। लेकिन मिनिमम बेसिक जो एफर्ट है उसको लगाना बहुत जरूरी है। अगर मिनिमम बेसिक एफर्ट नहीं लगाइएगा, डजेंट मैटर यू आर एन आईआईटी एन आईएम और अ टियर 3 ग्रेड, आप फेल होंगे। मेंस बहुत ब्रूटल है, पता ही नहीं चलता है, अभी तक नहीं पता चला मुझे मेरी क्या गलती थी। ओके, आई हैव टू वेट फॉर द मार्कशीट टू कम, एंड देन ओके, अच्छा एसए में कम थे या जीएस 2 में कम थे, और वो भी कब पता चलेगा? 10-12 दिन पहले प्रीलिम्स के। सो यू डोंट इवन गेट चांस टू कोर्स करेक्ट, आपको कोर्स करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है। सो मिनिमम बेसिक एफर्ट लगाइए, उसके ऊपर जितना आप एफर्ट लगाएंगे, उसके ऊपर आप जितना एफर्ट लगाएंगे वो आप फिर दैट इज योर बोनस पॉइंट। ठीक है।